Our today's topic is suture. Suture is a thread-like structure which is used to join the skin edges. Definition. Suture is a thread composed of absorbable or non-absorbable material used to approximate or keep the skin edges together. The suture might be made up of absorbable material or non-absorbable. जो absorbable है it may be absorbed in the skin, but जो non-absorbable suture है उसको बाद में remove करना पड़ता है manually. तो stitch is a series of stitches used to close a wound है ना, मतलब मल्टीपल जो स्टिचेस हैं दे आर यूज्ड टू क्लोज द वुंड. तो suture are divided into mainly absorbable or non-absorbable. After that, the classification of suture on the basis of absorption, they are classified into absorbable suture or non-absorbable suture. तो absorbable suture कौन से होते हैं? These are the suture which are usually made up of tendons of or fascia and thus get absorbed into the tissue after the few days. है ना, ये जो absorbable suture है ये normally या तो tendon से बने होंगे या fascia. Tendon और fascia are the soft tissue composed of collagen फाइबर से बने होते हैं. तो they get easily absorbed into the tissue within a few days. For example, catgut suture, it is a absorbable suture. After that, next है non-absorbable suture. These suture remain unabsorbed on the skin and thus have to be removed manually. है ना, जो non-absorbable suture होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे स्किन में, तो उनको मैनुअली रिमूव करना पड़ता है आफ्टर द इंसिजन हील्स. फॉर एग्जाम्पल सिल्क, नाइलॉन, लिनिन और स्टेनलेस स्टील. The absorbable suture are divided into synthetic और natural है ना. जो natural है मतलब जो natural चीजों से बने हैं these include multifilament और monofilament, और synthetic होंगे which are artificially prepared. naturally जैसे कि tendon या fascia से जो बने हुए हैं ना, और synthetic which are artificially prepared. These are also multifilament और monofilament. monofilament का मतलब हुआ कि single strand of fiber is present, और multifilament मतलब मल्टीपल स्ट्रैंड प्रेजेंट है ना. जैसे एक जो थ्रेड होता है उसमें भी मल्टीपल थ्रेड जब मिलते हैं तो वो एक थ्रेड बनाते हैं, दैट इज मल्टीफिलामेंट. और जब एक थ्रेड सिर्फ एक ही फाइबर से बना होगा, सिर्फ एक ही फाइबर होगा उसमें ना, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोफिलामेंट. After that, on the basis of material structure, it is monofilament or multifilament. Monofilament कौन से होंगे? These suture have a single filament extending throughout the length of the suture है ना. जो पूरा suture है उसमें simple एक फिलामेंट प्रेजेंट होगा, एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा. आफ्टर दैट मल्टीफिलामेंट, दीज सूचर्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल फिलामेंट असेंबल्ड इन डिफरेंट वे है ना. इसमें मल्टीपल फिलामेंट प्रेजेंट होंगे विच आर असेंबल्ड, मतलब इकट्ठे करके वो एक थ्रेड बनाएंगे. दीज सूचर हैव बेटर नॉट सिक्योरिटी. जो मल्टीफिलामेंट सूचर है उनकी नॉट सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है, उनमें जो नॉट लगती है, गांठ लगती है, वो ज्यादा अच्छी लगती है. आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल origin, these are natural और synthetic suture. natural है जैसे कि which are prepared from the collagen fiber of the mammalian intestine, या animal से जो बने होते हैं, animal के fascia या collagen fibers से, for example silk और catgut. Then synthetic suture कौन से होंगे? These suture are synthesized from non-natural sources except catgut और silk. Maximum जो suture हैं they are synthetic. Nearly all the available suture can be considered as synthetic sutures. After that, natural absorbable sutures कौन कौन से हैं? जैसे कि catgut. It is मोस्ट कॉमनली यूज सूचर मटेरियल, नॉर्मली एब्जॉर्वेबल है, कॉमनली यूज करते हैं. और इट इज कॉल्ड कैटगट. क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सब म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द शिप. ठीक है, जो शिप की सब म्यूकोजा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे ये प्रिपेयर किया जाता है. फिर जो रॉ मटेरियल है, जो सब म्यूकोजा होगा, दैट इज मैकेनिकली क्लीन्ड, उसको मशीन के थ्रू क्लीन किया जाता है, देन स्प्लिट इनटू द रिबन. ठीक है, तो फिलामेंट्स में उसको फिर स्प्रेड किया जाता है एंड फर्दर प्रोसेस्ड, फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होगी. आफ्टर दैट पाश्चराइज्ड बाय द गामा रेडिएशन है ना, उसका स्टरलाइजेशन की जाएगी, पाश्चराइज किया जाएगा उसको. कैटगट इज कमर्शियली सप्लाइड इन सेपरेट
डबल लेयर पैकेट में ये सप्लाई होता है एज प्लेन और क्रोमिक कैटगट। जो प्लेन कैटगट है दैट इज प्लेन, उसमें कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा, बट जो क्रोमिक कैटगट है इट कंटेन द क्रोमियम सॉल्ट। दिस क्रोमियम सॉल्ट प्रिवेंट टिश्यू इरिटेशन, है ना, जो ये क्रोमियम सॉल्ट है टिश्यू इरिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कोलेजन सूचर्स। द फ्लेक्सर टेंडन, टेंडन नॉर्मली क्या है, कोलेजन फाइबर ही होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर। दिस आर कन्वर्टेड इनटू द होमोजेनस डिस्पर्शन of pure collagen fibrils from which collagen fiber are made, है ना। जो ये फ्लेक्सर टेंडन है बीफ के, बीफ मतलब काउ, ठीक है, तो जो फ्लेक्सर टेंडन है बीफ के उनको कन्वर्ट किया जाएगा होमोजीनस डिस्पर्शन, मतलब सिमिलर टाइप में उनको कन्वर्ट करके उनके फाइबर्स बनाए जाएंगे और उनको यूज किया जाएगा। जैसे कैटगट था उसी तरह से ये भी प्लेन और क्रोमिक, क्रॉनिक नहीं है सॉरी, क्रोमिक CHROMIC क्रोमिक सूचर होते हैं। प्लेन में कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा, क्रोमिक में क्रोमिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट द टिश्यू इरिटेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज होमोलोगस सूचर। homologous मतलब which are obtained from the body of the person. तो these are the tissue suture obtained from the patient strips of fascia, है ना, ये भी जो collagen fiber है उससे ही बने होते हैं, obtained from the lateral aspect of the thigh, जो thigh का collagen fiber है उससे ये prepare किए जाते हैं person की body से। After that next is synthetic absorbable. It include polyglycolic acid which is also called as Dexone. It is a synthetic polymer of glycolic acid, a naturally occurring substance. It is absorbed in tissue by hydrolysis, है ना। ये normally body में कैसे absorb होता है, हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, chemical breakdown of compound due to the reaction with the water, hydro मतलब water से reaction, and not by the proteolysis like catgut। जो catgut suture है उनकी ब्रेकडाउन प्रोटियोलिसिस से होती है, क्योंकि कुछ एंजाइम होते हैं जो इसकी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोटियोलिसिस से कैटगट की एब्जॉर्प्शन होती है और हाइड्रोलिसिस से डेक्सोन की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम टिश्यू इज मिनिमल, ठीक है, एट 7 to 15 डेज, 7 से 15 दिन तक मिनिमल एब्जॉर्प्शन होगी, 30 दिन तक significant और maximum absorption take place at 60 to 90 days. After that, non-absorbable sutures, it include Vicryl. It is a copolymer of glycolate. ये body में absorb नहीं होंगे, they should be manually removed. Metallic wire है, suture wire is prepared from non-toxic stainless steel and silver. Surgical stainless steel suture wire is used in orthopedic और thoracic surgery. जो metallic wire है ये normally ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज हैं, थ्रेसिक सर्जरीज में ज्यादा यूज होती है। आफ्टर दैट द स्टैपल्स विच आर कॉमनली यूज्ड नाउअडेज। स्टैपलिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड ऑफ स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और दे आर ऑल्सो मैनुअली रिमूव्ड। लिनिन सूचर आर मेड अप ऑफ लॉन्ग स्टैल्पल फाइबर्स एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी। आफ्टर दैट द सूचर नीडल, जो सूचर में नीडल प्रेजेंट होती है, दीज आर मेड फ्रॉम द प्लेटेड कार्बन स्टील से बनी होती हैं। दीज आर टू टाइप ऑफ नीडल, कटिंग नीडल और राउंड बॉडीड नीडल। जो कटिंग नीडल है दीज आर हैविंग एटलीस्ट टू अपोजिट कटिंग एंड दिस में बी ट्रायंगुलर इन शेप, और जो राउंड बॉडीड नीडल होती हैं दे आर यूज्ड फॉर द फ्रेजाइल टिश्यू, है ना, सच एज लीवर और किडनी के लिए ही यूज होती है। मतलब जो कटिंग होगी, जो इसमें एक ट्रायंगल टाइप का एज बनेगा कटिंग नीडल में, है ना, साइड से कटेड होगी और मतलब कि एक साइड से क्या होगी, वो एक साइड से पॉइंटेड एज होगा, बट जो राउंड बॉडी नीडल है वो ब्लंट टाइप की नीडल्स होती हैं। आफ्टर दैट नीडल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो सूचर नीडल है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सो दैट इट डजंट ब्रेक इजीली, रिजिड इनफ टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, रिजिड होनी चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो एंड ज्यादा ना हो, एंड शार्प इनफ टू पेनिट्रेट टिश्यू विद मैक्सिमम रेसिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली सेम डायमीटर एज सूचर मटेरियल। जो सूचर होता है, थ्रेड होता है, उसी के डायमीटर की नीडल होती है। आफ्टर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द नीडल,
देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स है, पॉइंट्स ऑफ द नीडल, बॉडी ऑफ नीडल और आई ऑफ द नीडल। फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ द बॉडी, जो सबसे अपर वाला जो पार्ट होता है ना, बेसिक शेप ऑफ पॉइंट में भी कटिंग, टेपर्ड और ब्लंट। ठीक है, 3 शेप्स में पॉइंट आता है, या तो कटिंग होगा, ये टेपर्ड, ठीक है, पॉइंटेड होगा या ब्लंट होगा। तो कटिंग में क्या है, इन कटिंग पॉइंट अ मेजर शेप, सॉरी मेजर नहीं है, रेजर, RAZOR, रेजर शेप हॉर्न्ड कटिंग पॉइंट एट अपेक्स ऑफ द नीडल। ठीक है, जो अपेक्स है, जो टॉप पार्ट है नीडल का, वो कैसा होगा, जैसे हॉर्न होता है ना, उस टाइप का कटिंग पार्ट होगा। एंड इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज कन्वेंशनल कटिंग नीडल, रिवर्स कटिंग नीडल, साइड कटिंग नीडल और ट्रोकार पॉइंट। जो कन्वेंशनल कटिंग नीडल है फ्लैट होगी और ट्रायंगुलर होगी, और रिवर्स कटिंग नीडल इज ऑल्सो फ्लैट, बट जो इनकी कटिंग होती है वो अलग अलग टाइप की होती है ना, और ये भी ट्रायंगुलर होगी। साइड कटिंग नीडल इज अ लोअर साइड से फ्लैट होगी और पॉइंटेड फ्रॉम द साइड। एंड ट्रोकार पॉइंट कैसा होगा, जैसे पेंसिल होती है ना, मतलब साइड से बिल्कुल राउंड और अपेक्स बिल्कुल पॉइंटेड। ट्रोकार पॉइंट इज लाइक द पेंसिल। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट इज द बॉडी ऑफ द नीडल। टेपर, सॉरी, नेक्स्ट है टेपर। 3 टाइप्स की थी ना नीडल, ये वाली, हाँ, कटिंग, टेपर और ब्लंट। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कटिंग, सेकंड है टेपर्ड। टेपर्ड कैसी होगी, द बॉडी ऑफ द नीडल टेपर टू अ शार्प पॉइंट एट द टिप, है ना, जैसे मतलब जो टिप है वो शार्प होगी, और ब्लंट पॉइंट, द टेपर्ड नीडल इज डिजाइन विद राउंडेड ब्लंट पॉइंट एट द टिप। तो इसमें जो टिप होगा वो राउंड और ब्लंट होगा। आफ्टर दैट सेकेंड इज द बॉडी ऑफ द नीडल, जो थ्रेड और जो थ्रेड और पॉइंट के बीच का, सॉरी, जो आई और पॉइंट के बीच का पार्ट है, दैट इज बॉडी। द बॉडी और शाफ्ट ऑफ द नीडल वेरीज इन वायर, गॉज, शेप और द लेंथ, है ना, ये किसके साथ वेरी करता है, चेंज होता है, जो गॉज होता है, शेप होती है और लेंथ होती है वायर की, उसके अकॉर्डिंग होता है। आफ्टर दैट द आई ऑफ द नीडल, आई इज द सेगमेंट ऑफ नीडल वेयर सूचर इज अटैच्ड। ठीक है, आई पार्ट कौन सा हुआ, जहां पे थ्रेड अटैच होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज आई ऑफ द नीडल। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, आईलेस नीडल भी होती है, 1 आर्म्ड अटैचमेंट और 2 आर्म अटैचमेंट। आफ्टर दैट सूचर टेक्निक। ठीक है, जो नीडल थी उसके 3 पार्ट्स थे, पॉइंट ऑफ द नीडल, बॉडी ऑफ द नीडल और आई ऑफ द नीडल। पॉइंट होगा जो बेसिक पार्ट है, अपर पार्ट है, और जो आई और पॉइंट के बीच का पार्ट होगा दैट इज बॉडी, और आई पार्ट कौन सा होगा, विच इज अटैच टू द थ्रेड और सूचर। आफ्टर दैट द सूचर टेक्निक, इट इज मेनली कॉन्टिन्यूअस सूचर, इंटरप्टेड सूचर और मैट्रेस सूचर। जो कॉन्टिन्यूअस सूचर है, दी सूचर रन थ्रू द होल इंसीजन विद नो इंटरप्शन इन बिटवीन इंडिविजुअल सूचर, है ना, जो कॉन्टिन्यूअस होंगे, मतलब उनमें हम जैसे एक सूचर लगेगा फिर कट कर देते हैं, फिर दूसरा लगाएंगे, वैसा नहीं है। इसमें जो सूचर टेक्निक है दैट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, देयर विल बी नो इंटरप्शन इन बिटवीन द सूचर। द टेक्निक इज सिमिलर टू इंटरप्टेड सिंपल सूचर विदाउट कटिंग दैम आफ्टर ईच स्टिच, है ना। जैसे इंटरप्टेड में हर एक स्टिच के बाद क्या है, उसको कट कर देते हैं, फिर अगला स्टिच लगाएंगे, बट कॉन्टिन्यूअस में कंटिन्यू सूचरिंग करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है इंटरप्टेड सूचर। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक एंड इट इज कॉल्ड इंटरप्टेड बिकॉज द इंडिविजुअल स्टिच आर नॉट कनेक्टेड, है ना, जो एक स्टिच है दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा, उसको कट कर देंगे। प्लेसिंग एंड टाइंग ईच स्टिच इंडिविजुअली इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना, तो इसमें एक एक स्टिच लगाना पड़ता है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आफ्टर दैट थर्ड इज मैट्रेस सूचर। इट इज अ टेक्निक इन विच नीडल इज पास ट्वाइस थ्रू बोथ द स्किन एजेस, है ना, मतलब इसमें एक ही जो स्किन एज है जहां पे सूचर लगा रहे हैं, 2 बार थ्रेड को पास करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर वहां पे सूचरिंग होगी इसकी, सॉरी वहां पे नॉट लगाएंगे। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड को सूचरिंग की, फिर राइट से फिर से लेफ्ट को करेंगे, फिर उसके बाद वहां पे नॉट लगाएंगे,
क्लियर हो गया. These are the 3 type of suture: continuous suture, interrupted suture और mattress suture. These are normally used common suturing technique. This is all about the topic.